الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سيهزم الجمع ويولون الدبر صدق اللہ المولانا العظیم. جناب چیئرمین، جب وزیر خزانہ صاحب نے اپنا بجٹ پیش کیا اور بجٹ تقریر کی 14 جون کو، تو وہ 2007-2008 کے بجٹ سے زیادہ پچھلے 5 سال کی ان کی کارکردگی تھی، اور یہ ان کے زیبا بھی ہے، اور اس لحاظ سے یہ اس ایوان کا میں سمجھتا ہوں اعزاز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حکومت کو پورے 5 سال دیے اور ان کو وسائل دیے، ان کو ذرائع دیے، اور اگر یہ کوشش کرتے اور اپنے ان وسائل اور ذرائع کو استعمال کرتے تو پنجاب کے اندر ایک انقلاب یہ لا سکتے تھے. ان 5 سالوں میں اگر میں تجزیہ کروں تو ایک اندازے کے مطابق تعلیم پر، صحت پر اور ترقیاتی کاموں کی مد میں 7 کھرب روپے، کم و بیش 7 کھرب روپے خرچ کرنے کا حکومت کا دعویٰ ہے. لیکن برسر زمین اگر آپ حقائق کو دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ ان 5 سالوں میں مہنگائی کی کیا صورتحال ہوئی ہے، غربت کی کیا صورتحال ہوئی ہے، بے روزگاری کی کیا صورتحال ہوئی ہے، اور پنجاب کے اندر امن اور امان کی کیا صورتحال ہے، تو نظر یوں آتا ہے کہ اتنا بڑا سرمایہ اور اتنی خطیر رقم یہ گویا ضائع ہو گئی ہے، اور برسر زمین اس کی کوئی ہمیں نظر نہیں آتی. میں اس کی صرف معزز ممبران خاموشی اختیار کریں گا. جناب چیئرمین، ایک یہ بات کہی جاتی ہے کہ آج اس سال یہ جو ہمارا مالی سال ہے، پاکستان میں فی کس آمدن یہ $946 ہے. $946 فی کس آمدن کو اگر آپ سالانہ سے ماہانہ تقسیم کریں تو پاکستانی روپے میں ہر ایک فرد کو 4600 روپے ملنے چاہیے. اگر 5 افراد کی فیملی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ماہانہ 22,000 روپے ملنے چاہیے. لیکن جب آپ کسی غریب آدمی سے جس کے گھر کے 5 افراد ہوں اس سے بات کریں کہ تمہیں 22,000 روپے ملنے چاہیے تو وہ آپ کو اور مجھ سے کہے گا کہ تم تو مجھ سے مذاق کر رہے ہو، ایک سنگین مذاق کر رہے ہو. لیکن جناب والا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعداد و شمار بالکل درست ہیں، اور وہ درست اس لیے ہیں کہ پاکستان کے اندر اتنے وسائل موجود ہیں کہ اگر انہیں منصفانہ طریقے سے تقسیم کیا جائے، ان میں ہر ایک شخص کو یکساں مواقع دیے جائیں تو ہر ایک آدمی کو، ہر 5 افراد کی فیملی کو ماہانہ 20-22 ہزار روپے دیا جا سکتا ہے. لیکن پاکستان کے سارے وسائل پر 2% طبقہ قابض ہے، اور باقی 98% جو عوام ہے وہ بھوکوں مر رہے ہیں، وہ فاقہ کشی کر رہے ہیں، وہ خودکشی پر مجبور ہیں، اس لیے کہ سرمایہ دار، جاگیردار، ملٹری، سول بیوروکریسی یہ پاکستان کے وسائل پر قابض ہو گئی ہے. لینڈ مافیا پاکستان کے وسائل پر قابض ہو گیا ہے، اور وہ پاکستان کے عوام کو جینے نہیں دے رہا. جناب چیئرمین، گزشتہ 5 سالوں میں اگر میں صحت کی مد کو لوں تو 30 ارب روپے سے زیادہ اس صوبے میں صحت کی مد میں خرچ کیا گیا ہے. لیکن آپ نے اسی ایوان میں ایک تحریک التوا کو ڈسکس کیا کہ ایک غریب آدمی کے 2 بچوں کو سانپ نے ڈس لیا، وہ بیچارہ شیخو پورہ سے لے کر لاہور تک ہر اسپتال میں مارا مارا پھرتا رہا. بالآخر اس کے دونوں بچے سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے مر گئے، لیکن کسی اسپتال میں اس کے لیے ویکسینیشن نہیں تھی. 30 ارب روپیہ ہم نے ضائع کر دیا. میں اپنے حلقہ انتخاب کی بات کرتا ہوں، 10 لاکھ آبادی ہے اس کی، لیکن اس پر کوئی ایک سرکاری اسپتال نہیں ہے. جناب اسپیکر، مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیں. کہ یہ ایک طرف تو ہماری جو فری ایمرجنسی سروسز ہے اس میں ہم ہر چیز پرووائڈ کر رہے ہیں. اینٹی اسنیک وینم جو ہے وہ پاکستان میں نہیں اویلیبل ہوتا، وہ باہر سے آتا ہے. وہ شارٹیج تھی تو اٹ واز اے جسٹ چانس. اور وہ اس کا کیا کہے گا جو اتنی ہم سی ٹی اسکین، MRI اور اتنی چیزیں مفت فراہم کر رہے ہیں. یہاں پہ جو ہارٹ اٹیک ہوئے 2 لوگوں کو یہاں پہ میں خود لے کے جاتی رہی، فری سروسز پرووائڈ کرتے رہے. یہ کیا جھوٹ کا پلندہ ہے. مولانا صاحب اتنا جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ انسان کو کوئی سچائی کی طرف بھی. اور محترمہ فرزانہ صاحبہ، آپ تقریر میں کرپشن نہ کریں. یہاں پہ ان کو حق حاصل ہے
जो बात वो कहना चाहते हैं कहें। हाँ जी। नहीं, ये इस ऐवान में इस किस्म के अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। तो ये बात मैं हज़फ करता हूँ, किसी मेंबर के मुतल्लिक ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। तो ठीक है, वो बात कर रहे हैं, आप लोग भी सुन रहे हैं, उनके साथी भी सुन रहे हैं और प्रेस भी सुन रहा है, क्या सच है क्या गलत है, तो आप ये उन पे छोड़ें। चलो हदीस सुना के आप बैठ जाए। में फैसला ना करे, और अगर कोई इस तरह चरक जुबानी से आपको झूठ मूठ बता दे तो हमारे तो किए किराए पे आप पानी भरवा रहे हैं। हम आपको क्या बताएं, जो रात दिन हम मेहनत करते हैं वो क्या तो आराम से आते हैं, तनख्वाहें लेके घर चले गए। जो रात दिन हम अस्पतालों में विजिट करते हैं, जो हर चीज। शुक्रिया, आप बैठ जाए जी। वकास साहब, जनाब चेयरमैन, वकास साहब, बब्बू साहब मुकम्मल कर लें फिर। गुजारिश ये है कि जनाब एक तो डॉक्टर फरजाना नज़ीर को जनाब स्पीकर ये बताए कि जब चेयर बोल रही हो, चेयर कोई बात कह रही हो तो खामोशी से सुनते हो। आपने देखा कि वो आप उनको कह रहे थे कि भाई खामोश हो जाए, लेकिन वो मुसलसल बोलते जा रही थी। तो जनाब स्पीकर, एक तो सुबह आपने ये चौधरी ज़हीर साहब को, स्पीकर साहब ने भी कहा है, इन्हें कहें कि ये जो है वज़ीर फिनांस मिनिस्टर नहीं है, ये बल्कि हेल्थ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं। ये भी इनकी हालत ये है कि किसी हॉस्पिटल में जाएं तो वहां से इनको निकाल देते हैं, कहते हैं कि चले बीबी बाहर। शुक्रिया। तो ये कुछ कम अज कम क्या वकास साहब जारी करें। वकास साहब, जनाब जी, वकास साहब आप शुरू करें। जनाब शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मैं अगर अपनी मोहतरमा बहन का जवाब देना चाहता तो दे सकता हूं, लेकिन उनकी दिमागी हालत को देखकर मैं उनसे एहराज कर रहा हूं। मैं अपनी बात को जारी रखता हूं कि इस ऐवान में ये बात आई थी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा आदमी, झूठ नहीं बोलता, और इस ऐवान में वजीर ने उसको एडमिट किया था, लेकिन बहरहाल उसको मैं अब आगे नहीं बढ़ाता। मैं अपने हल्के इंतखाब की बात कर रहा था कि वाकई टेक्सला जहां से मैं PPR जहां से मैं मुंतखब मेंबर हूं, उस पूरे हल्के में सरकारी अस्पताल नहीं है। तो आप उससे अंदाजा लगा लें कि पंजाब के अंदर हम इतना अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसका आउटपुट क्या है। जनाब स्पीकर, इस वक्त पुलिस पर 5 सालों में 1 खरब रुपया खर्च किया गया है। 20 अरब रुपया सालाना, और इस साल 29 अरब रुपया, कमो बेश 1 खरब रुपया पंजाब की पुलिस पर खर्च किया गया है। लेकिन आप देखें कि इसी पंजाब के अंदर डकैतियां, चोरियां, और पंजाब के अंदर ये भी वाकया हमने देखा, और तारीख में शायद पहला हो, कि जेल के अंदर जजों को मार दिया गया, कचहरियों के अंदर फायरिंग होती रही, अदालतों के अंदर मुलजिमों ने दूसरे लोगों को मार दिया। पंजाब की सूरत हाल ये है कि यहाँ से वज़रा के घरों पर जो है वो चोरियां हुई, उनसे गाड़ियां छीनी गई। यहाँ ये पंजाब जिसमें चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत है, सदर पाकिस्तान पर 2 दफा कातिलाना हमला इसी पंजाब के अंदर हुआ। ये पंजाब की जो है वो अमन अमान की सूरत हाल है, जिस पर आप 1 खरब रुपया पुलिस पर खर्च कर रहे हैं, और उन पुलिस वालों को आवारा कुत्तों की तरह छोड़ा हुआ है इन्होंने सियासी कारकुनों के ऊपर। लखपत जेल में जो पीपल्स पार्टी का किए जाते हैं, जो पीपल्स पार्टी के वो कल फौत हुए हैं कारकुन, इसी तशद्दुद के नतीजे में। इसी लाहौर में जब एक सियासी कारकुन को पकड़ने गए तो वो नहीं मिले, तो उनकी बहन और उनकी वालदा को उठाकर जेल में ले गए, और जिसको चाहते हैं उसकी इज्जत उठा लेते हैं। ये पुलिस इन्होंने पाली इसलिए है कि सियासी इंतकाम उससे लिया जाए और उसके जरिए अपने इख्तिदार को ज्यादा मजबूत किया जाए। जनाब चेयरमैन, मेरा जो हल्का इंतखाब है, मैं फिर उसकी तरफ आता हूँ। 1986 में वहां पर 120 कांस्टेबल्स की पोस्टें ये इन्होंने रखी थी, आज तक वही है। लेकिन मजे की बात यह है कि आज भी उसमें 30 पोस्टें खाली हैं। ये फिर कैसे अमन और अमान कायम कर सकते हैं? ये कैसे चोरियां और डकैतियां रोक सकते हैं? जो पुलिस है उसे सियासी तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और जो उसकी कमी है उसको पूरा नहीं करते, और आवाम को इन्होंने डाकुओं और चोरों के हाथ में दे दिया है। जनाब स्पीकर, तालीम पर इस सारे अरसे में 60 अरब के लगभग
5 साल में खर्च हुआ है, मिसिंग फैसिलिटीज के नाम पर और स्कूलों के अपग्रेडेशन के नाम पर। लेकिन मेरे साथ चलें, मैं आपको अपने हल्का इंतखाब में और जिला पिंडी में ऐसी इमारतें दिखाऊंगा स्कूलों की जिनकी छतें गिर रही हैं और उनके नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसे स्कूलों की निशानदेही करूंगा जिनकी चारदीवारी नहीं है। ऐसे कॉलेजेस और स्कूलों की निशानदेही करूंगा जहां पर बच्चों के लिए टॉयलेट और बाथ नहीं है, जहां पर पीने के लिए पानी नहीं है, जहां पर बिजली नहीं है। लेकिन ये पैसा कहां खर्च हो रहा है, ये सारा आपके सामने होगा। फिर अगर ये कहते हैं कि हमने इस साल 21 अरब रुपया तालीम के लिए रखा है, लेकिन पंजाब भर के टीचर्स वो सड़कों पर आए हुए हैं, सरापा एहतजाज है, और वो कहते हैं कि पिछले साल इन्होंने बजट में हमारे साथ वादा किया था कि हम अलाउंस देंगे, वो आज तक नहीं दिया, और उसके नतीजे में लाखों बच्चों का इम्तिहान रह गया है। उनका साल 20 लाख बच्चों का इम्तिहान रह गया है और उनका साल जाया होने का खदशा है। लेकिन हमारी हुकूमत है कि इसमें सब अच्छा है, अच्छी हवाएं चल रही हैं और ये अगला इंतखाब जीतने की बातें कर रहे हैं। मेरे इंतहाई मोहतरम स्पीकर साहब, जनाब चेयरमैन, मैं आज आखिरी ये जो बजट है इसके मौके पर रिकॉर्ड पर ये भी बात लाना चाहता हूँ कि चौधरी परवेज इलाही साहब और उनके खानदान के बारे में सुना था कि बड़ा रवादार फैमिली है, बड़ी रवादारी है इनकी सियासत में और ये लोगों को साथ लेकर चलते हैं। लेकिन इन्होंने मुझे बराह रास्त सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। 5 साल में एक पैसा और एक पाई तरक्याती फंड मुझे जारी नहीं किया गया और उसकी वजह ये है कि चौधरी परवेज इलाही साहब जिमनी इलेक्शन में तशरीफ लाए थे और अपने कैंडिडेट के हल्के में फिर उसके हक में इन्होंने जलसा किया था, 10 करोड़ की ग्रांट का ऐलान भी किया था। लेकिन उनकी बदकिस्मती कि वो कैंडिडेट हार गया तो फिर उन्होंने वहां से मुंह मोड़ लिया। और अभी जब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब 3-4 महीने पहले टैक्सला गए तो परवेज इलाही साहब ने वहां जाकर वही अपना गिला भी दोहराया कि मैं पहले भी आया था और आपने मेरे कैंडिडेट को वोट नहीं दिया और आपको मैंने बहुत सारी ग्रांटें दी थी। अपने दिल पर उन्होंने वो बात ले ली और इसके नतीजे में 5 साल तक मेरे तरक्याती फंड रोके। लेकिन इस पर मैं ये बात रिकॉर्ड के लिए कहना चाहता हूँ और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने हल्के की आवाम को कि उन्होंने पंजाब भर में जिमनी इलेक्शन में 15 सीटों पर इलेक्शन हो रहा था, 14 में खाफ लीग जीती थी, लेकिन एक पर मुझे जिताया और अपने बाशऊर होने का सबूत दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो बाशऊर आवाम अब भी हक़ाइक़ को मद्देनजर रखेंगे और इंशाअल्लाह फैसला हक़ और इंसाफ का होगा। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ अपनी बात को आखिरी वो टच देता हूँ, आपके इंशाअल्लाह आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। 14 तारीख को जब बजट सेशन का इफ्तिताह हो रहा था तो कारी सदाकत साहब ने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की, सयहुज़मुल जमउ वयुवल्लून दुबर, अनक़रीब ये जत्था शिकस्त खाएगा और पीठ फेर कर भागेगा इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग।